Hello. Good morning, participants. Good morning, sir. Good morning, Good morning, sir. sir. Good morning, Good sir. morning. Good Good morning, sir. sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. So, नमस्ते सर। namaste. Let's start. So, नमस्ते सर. Good morning, sir. yes, please mute yourself. Let's start. So, myself, Sajid Jamal. I am a professor in the Department of Education, Muslim University, Aligarh. So, teaching, learning, testing, assessment, and evaluation, these are my special areas. My PhD, and I have conducted so many researches, written so many papers, and of course delivered so many lectures on these topic in various teachers training programs or faculty induction programs. So the topic that has been given to me is teaching techniques that you can see on the slide. Of course, my friends, if I see this group, there is lot of diversity, definitely related to the teaching subject, related to the age and gender, and so many diversities, definitely. But there's one thing common, that you all are teachers and I'm also a teacher. And in order to teach, basically, we use some technique. So my whole lecture will be focused on that. I mean, all those teaching techniques, how we can teach better, how we can teach effectively. So there are total, I think, 9 slides in my presentation, out of which effective slides are 7. So every slide will be taking perhaps 10 minutes. So it is 11 by my watch. Hopefully by 12:10, by 12:15, I'll be able to finish. And then definitely the remaining 15 minutes we will be utilizing in discussion. So if you have any doubt, any queries, you can ask, or if you want to share anything with me, definitely you can ask. So 15 minutes we will utilize in that. So my friends, let's begin. And since all of you are teachers, and I'm fortunate to address a group of teachers, so I'll be asking a very simple question from you people. There are 2 terms. One is teaching, another one is learning. So I would like to know what's the difference between teaching and learning. Since all of you are teachers, so I hope you will give satisfactory answer. Your time starts. Please speak. My friends listening to me, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, please. sir. Yes, sir. Yes, sir. My question Sir. is, Teaching is an art of yeah, delivering knowledge, whereas learning is grasping that knowledge. okay, who are you, ma'am? Ma'am, who are you? Sir, my name is Sivanshu. I'm my What do you subject is teach? physical education. Physical education. Yes, sir. Okay, ma'am. Thank you. Any other person will supplement, ma'am? सर टीचिंग हम किसी चीज को हम सिखा रहे हैं। लर्निंग यदि वो उस चीज को एडॉप्ट कर पा रहा है, ग्रहण कर पा रहा है, तो वो लर्निंग है, अन्यथा वो बेकार है। कि हमने बताया, उसको ज्ञान तो दिया, लेकिन अगर विद्यार्थी ने उसे ग्रहण नहीं कर पाया है तो वो लर्निंग नहीं हुई, सिर्फ टीचिंग हुई। राइट। आप कौन है मैम? डॉक्टर अनुराधा सिंह सर, मथुरा से। अच्छा, क्या पढ़ाती हो मैम आप? हिंदी। ओके। एनी अदर आंसर? Yes, sir. Yes, sir. सर I can सर say क्या है that. कि यस प्लीज किसी स्पीक सर। विषय वस्तु Yes. को मतलब किसी Yeah. सब्जेक्ट आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। किसी विषय वस्तु को आधार बनाकर जब हम विचारों का जब आदान प्रदान करते हैं तो शिक्षण होता है, मतलब टीचिंग होता है। अच्छा, आधार बनाकर जब हम
आपस में विचार विमर्श करते हैं, वो शिक्षक हो या स्टूडेंट हो या हम आप जो विचार विमर्श कर रहे हैं किसी मुद्दे पे, किसी टॉपिक पे, वो शिक्षण का काम होता है। और उस शिक्षण की प्रक्रिया से जो हम ग्रहण करते हैं वो लर्निंग होता है। अच्छा जी, ओके। आप कौन सा हैं सर? मैं निर्भय कुमार सिंह। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं निर्भय जी आप? मैं शामली से हूँ, आपको पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर, बीबीपीसी कॉलेज। Okay, so I think I think, sir, as I understand, teaching and learning are two-way process. I think if somebody is teaching, she is also learning as well. okay, So it's a two-way process, and in this process, we teach and we convey our ideas or anything we are intent to teach or intent to convey, and at the same time, we are also learning in the process. okay sir. Who are you? Naeem Khan, Meta. I am assistant professor in geography. Sir, Where sir? ETA, Okay. Janta Degree College, ETA. Okay, that's enough. I have taken enough opinion from you people. Definitely, very soon I will be asking another question, and then all those people who couldn't respond to this question, they might get the chance to respond that question. So, in a nutshell, in fact, all of you are partially right. There's one difference between teaching and learning. Just try to understand. If you see the process of education, we define education as a bipolar process. एक पोल है, उस पोल के दो एंड हैं, दो सिरे हैं। तो एक सिरे पर टीचर होता है और दूसरे सिरे पर लर्नर होता है। So remember my friends, in this process of education, whatever the efforts are made by the teacher, that comes under the category of teaching. Yani you're lecturing, you're asking question, you're giving answer to the questions of the students, you're dictating notes in the classroom, you're drawing figure, you're giving data. I mean, everything that you do at your end, on your part, that comes under the category of teaching. लेकिन लर्नर अपने एंड पर जो करता है वो लर्निंग है बेसिकली। सो टीचिंग मीन्स योर जॉब इज ओवर। जैसा कि अभी मैम ने थोड़ी देर पहले, वो हिंदी वाली मैडम ने काफी अच्छी बात कही थी कि टीचिंग मीन्स योर जॉब इज ओवर, बट वेदर दे हैव गॉट समथिंग और नॉट, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन योर टाइम, इन माई टाइम, टीचिंग वाज मच मोर इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज वी हैड ओनली टू सोर्सेज ऑफ नॉलेज। वन सोर्स वाज द टीचर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और दूसरा जो सोर्स था वो किताबें थी लाइब्रेरी में, और कोई सोर्स नहीं था ज्ञान का। आमतौर पर यही दो सोर्स थे। लेकिन आज के दौर में बेशुमार सोर्स, आई मीन इफ यू आर सिंपली काउंटिंग द सोर्सेज ऑफ नॉलेज तो यू कांट, आई मीन थाउजेंड ऑफ सोर्सेज माइट बी देयर। तो आज के दौर में इसलिए लर्निंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू टीचिंग। सो वी एज ए टीचर शुड ट्राई टू फोकस ऑन लर्निंग। विथ दिस बेसिक इनफैक्ट idea, I would like to start my lecture. Let me remind you, the topic of my lecture is teaching techniques. And of course, in order to teach in the classroom, we use lecture method. Whether you are teaching zoology, you are teaching geography, you are teaching Hindi, you are teaching Urdu, you are teaching Sanskrit or physics or zoology, any subject. By and large, at higher education level, in the universities, in the colleges, to the undergraduate and postgraduate students, in order to teach, we use lecture method. So, lecture has been much criticized, lecture has been much demonized. But my friends, since we have a huge number of students, and by and large, we don't have enough resources in our institutions, तो इतनी बड़ी जमात को, इतने बड़े गिरोह को थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे पाना, ये लेक्चर के अलावा किसी और मेथड के बस की बात नहीं है। यानी सच्ची, बल्कि सिलेबस कैन बी कवर्ड ओनली थ्रू द लेक्चर मेथड। अब मैं अपने तजुर्बात की बुनियाद पर, इनफैक्ट मैं कोई भी बात आपसे बुकिश नहीं कर रहा हूं। सिंस लास्ट 25 years I am in the teaching profession, so I'm just sharing my experiences with you people. So there are so many factors which affect the quality of your lecture, but these 5 factors which you can see on the slide, these are the most important factors that affect the quality of your lecture. So first factor that I will take, university culture. I mean the university in which you are serving,
it might be state university, central university, it might be affiliated university, it might be deemed university, or it might be a college, it might be a postgraduate department of the college or simply undergraduate department of the college. तो वहां पर कल्चर क्या है, यानी कल्चर से मेरी मुराद ये है कि I mean, if it is a residential university, so what happens? Usually teachers and students live in the same campus. तो probability is that कि students की attendance जो है वो classroom में अच्छी होगी, वो अच्छे होंगे, responsive होंगे, interactive होंगे. तो accordingly teacher अपने आप को well prepared करके जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तैयार होकर के जाते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से students को deliver कर पाए. But no, if it is a college in a remote area, किसी rural area में है जहाँ पर जाहिर सी बात है कि attendance बहुत कम होती है. आज को जो बच्चा आया कोई जरूरी नहीं कि कल वही बच्चा आए, कल को कोई दूसरा बच्चा आए, या आज जो बच्चा आया है वो एक हफ्ते बाद आएगा, समथिंग लाइक दैट. तो उससे एक तरह की somehow it directly or indirectly affects the quality of your lecture. तो आपका पहला जो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है आपके लेक्चर को अफेक्ट करता है वो है आपकी यूनिवर्सिटी का कल्चर. नाउ सेकंड वन, एकेडमिक एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट. सो डेफिनेटली देयर इज नो डाउट, अगर बच्चों का IQ लेवल अच्छा है, दे आर सीरियस फॉर देयर करियर, रिसर्च के लिए बहुत मोटिवेटेड है, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यानी उसी हिसाब से आपका जो लेक्चर जो होगा वो उसकी क्वालिटी जो उस हिसाब से डिसाइड होगी. आई मीन इफ दे आर बिलो एवरेज, और जाहिर सी बात है कि कहीं और अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिल पाया, फिर फाइनली लास्ट ऑप्शन के तौर पर आपके पास आए, तो जाहिर सी बात है कि वो उनका जो है वो एकेडमिक इंटरेस्ट वो नहीं है जो बाकी दूसरे स्टूडेंट्स का. तो सिमिलरली somehow I mean it affects the quality of your lecture. Third one and very important one, resources. The resources with which you have been blessed. I mean, a well-equipped library, a well-equipped laboratory, Wi-Fi connection, desktops, laptops, and all those things. तो आज के दौर में ये कहा जा रहा है कि ये physical resources जो हैं वो बड़े important होते हैं. ये physical resources students को भी attract करते हैं, and of course they give satisfaction to teachers. तो ये तीसरे factors हैं resources जो कि आपके lecture को वो affect करते हैं. जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास Wi-Fi connection है और हर उसमें LCD प्रोजेक्टर आपके क्लास में या आपके लेक्चर थिएटर में लगा हुआ है, तो डेफिनेटली आप पहले से PPT बना करके ले जाएंगे, उसको उस पे प्रोजेक्ट कर देंगे, लोग देख लेंगे. अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर आपको बोर्ड पे कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनाना पड़ेगा, डिफिकल्ट डेटा लिखना पड़ेगा, इट विल बी वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम. तो थर्ड फैक्टर जो आपके लेक्चर को अफेक्ट करता है, दैट इज द रिसोर्स विथ विच यू हैव बीन ब्लेस्ड एट योर कॉलेज और एट योर यूनिवर्सिटी. उसके बाद की बात आती है टीचिंग स्किल्स एंड एटीट्यूड. ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है कि तमाम फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही फैक्टर है, आपके अंदर क्या टीचिंग स्किल्स हैं और आपका एटीट्यूड टीचिंग के लिए क्या है. सो वी सिंपली डोंट टीच फॉर 40 मिनट और 1 आवर और 50 मिनट और 55 मिनट. We groom the personality, we inculcate the values, we imbibe the skills. और 1964-66 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया था जस्ट टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन. तो एक बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे जो इस कमीशन को चेयर कर रहे थे, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी. तो ये कोठारी कमीशन की ओपनिंग जो रिपोर्ट है कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम. हिंदुस्तान का मुकद्दर, हिंदुस्तान का भाग्य उसकी कक्षाओं में बनाया जा रहा है. तो इफ वी हैव दिस एटीट्यूड, so definitely we will contribute. If we are blessed with the skills, how to ask the question, how to use the blackboard, I mean, how to deliver effective lectures, how to satisfy our students, how to take their queries, how to satisfy them through our responses. I mean, all these things if we are blessed with, so definitely ये हमारे lecture की quality को affect करता है. At this juncture of time, I would like to tell you one story, and then definitely we will proceed to the fifth factor. So all of you are teachers, I am quite sure you might be knowing कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे उनका टीचर कौन था. डू यू नो माय फ्रेंड्स? अरस्तु सर. Okay, thank you. Arastu sir. Please mute yourself. So all of you are quite informed. Thank you. So the teacher of Alexander the Great was Aristotle, Arastu. So at one point of time in the history, Alexander marched with a grand army to win over some area, some country in Europe. So it was a very strong, state,
and people were quite, warriors, and the army of that country was very strong. But somehow Alexander wanted to win that country. So he marched with a grand army, and there were so many seasoned generals in his army. Aristotle was also with Alexander in that army. So it is said, in fact, that whole of the personality of Alexander was shaped by the teaching of Aristotle. Aristotle had a very everlasting impact on Alexander. So they won a lot of area of that country, and in fact, Alexander himself was a very brave person, and all of his army, they fought bravely, and they defeated the army of that country. So they fled from the battlefield, and when they fled, they took refuge in their fort. So the fort was located near a river. एक नदी थी काफी बड़ी, और उस वक्त, जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त नदी में काफी बाढ़ थी, सैलाब था, फ्लडेड थी, भरी हुई थी नदी, बारिश का दिन था, भरी हुई थी नदी. So that fort was located near that river. और बहुत मजबूत फोर्ट था, बहुत मजबूत किला था, उसको किसी तरीके से जीता नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल था उसको जीतना. So there was one wooden bridge, जिससे कि नदी पार करके लोग फोर्ट तक जाते थे. तो जब वो उस कंट्री की आर्मी जब बैटलफील्ड से भागी, तो उन्होंने उस वुडन ब्रिज को जला दिया. जितने वहां पर कश्तियां रखी हुई थी, नावें रखी हुई थी, तो दे बर्न ऑल दोस. यानी there was no way to reach to the fort. In order to reach the fort, you have to cross the river, and there was no means at that time to cross the river. अब एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी अलेक्जेंडर के सामने. जब तक वो किला नहीं जीत लेता, तब तक उसकी जीत कंप्लीट नहीं होती, और किला जीतने के लिए उसको नदी को पार करना पड़ता. और जाहिर सी बात है कि नदी पर ना तो ब्रिज था, ना तो कोई नाव थी, तो कैसे नदी को पार करें? इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अलेक्जेंडर. सो व्हाट टू डू? In order to do this, in fact, Alexander called a meeting of all of his generals. और उस मीटिंग में अरस्तु भी शामिल था, अरिस्टोटल भी था. अब इस पर विचार विमर्श होने लगा कि भाई हम नदी को कैसे पार करें, क्या किया जाए, क्या स्टेट जीतना है. सो समवन गेव द ओपिनियन कि पहले हमको नदी की गहराई जाननी पड़ेगी, नदी कितनी गहरी है और नदी का जो पानी है उसका फ्लो कितनी तेज है. अगर हम ये दो चीजें जान जाएंगे तो अकॉर्डिंगली वी कैन हैव एनी स्ट्रेटजी टू क्रॉस द रिवर. Now the $1 million question was that, yes, okay, people agreed on that. Yes, it's a nice idea. We should know the depth of the river as well as the flow of the water. But the $1 million question was, who will go to the river? हम में से कोई जाए, हम में से कोई नदी में जाए, नदी में उतरे और देखे कि नदी कितनी गहरी है और पानी का फ्लो कितना तेज है. So $1 million question was, who will go to the river? तो कोई आगे नहीं आया इस पे. तो फाइनली एरिस्टोटल ने कहा कि अलेक्जेंडर, ओके, आई विल गो टू द रिवर, आई विल एंटर इनटू द वाटर एंड आई विल ट्राई टू नो द डेप्थ ऑफ द रिवर एज वेल एज द फ्लो ऑफ द वाटर. तो अलेक्जेंडर ने मना किया उसको कि नहीं उस्ताद, आप मत जाइए, मैं जाऊंगा. सो देयर वाज ए आर्गुमेंट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड एरिस्टोटल. बहुत मीनिंगफुल आर्गुमेंट है, आप लोग गौर से सुनिए इसको. सो एरिस्टोटल सेड, अलेक्जेंडर, I am forbidding you to go to the river because you are the commander-in-chief of this grand army. If you will go to the river, you will enter into the water and you will be drowned. Then your whole army will lose its morale. अगर तुम नदी में डूब जाओगे तो तुम्हारी आर्मी, तुम्हारी सेना पूरा उत्साह खो देगी. And the great purpose for which we have come to this place will not be served. So listening to it, what Alexander said, that was historical. Alexander said, yes, oh my great teacher, if I will go to the river, I will enter into the water and I will be drowned, and you will be alive, then you can in turn prepare thousands of Alexanders. But oh my great teacher, if you will go to the river, you will enter into the water and you will be drowned, then me and my whole army will not be able to prepare one single Aristotle. My friends, Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. My friend. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Modi, I think Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. please mute yourself. Yes, please mute yourself. So, my friends, nothing can replace a teacher. So, if we are blessed with teaching skills and we have positive attitude, what we are going to contribute to the people, to the society, to the nation, to the country, definitely we will deliver, and that affects the quality of our lecture. और अगर negativity है हमारे लिए कि ये बच्चे बेकार हैं, क्लासरूम में जो बैठे हैं इनका आईक्यू बहुत पुअर है, ये बहुत खराब है, ये कुछ नहीं करेंगे, मैं तो फिर बस जा रहा हूँ किस तरीके से टाइम पास करूंगा, समथिंग लाइक दैट, तो डेफिनेटली योर लेक्चर विल नॉट बी गुड. So this was the fourth factor. Finally, the last factor, that is constructivist approach. आज के दौर में काफी इसकी चर्चा हो रही है, काफी इस पे बात हो रही है. So earlier people used to say that child's mind is like child's mind is like a clean slate. Whatever you want to write. लेकिन आज के दौर में कहा जा रहा है कि नहीं, चाइल्ड का जो दिमाग है वो क्लीन स्लेट नहीं है, बल्कि it is filled with the information. So what a teacher is required in fact to activate that, उसके माइंड को, बच्चे के माइंड को, स्टूडेंट के माइंड को एक्टिवेट करें, क्योंकि जो ज्ञान के स्रोत आपके लिए है वही ज्ञान के स्रोत उसके लिए भी हैं. जो किताबें, विकिपीडिया, यूट्यूब, I mean all those things which are available to you, it is available to them also. So it's never like that they don't know, they know. Only thing is that just we have to activate. तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों मिल करके ज्ञान की रचना करें, ज्ञान को, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें. दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. यानी डोमिनेटिंग रोल जो टीचर का हो वो ना हो, बल्कि दोनों लोगों की को बराबरी का जो है वो स्थान दिया जाए. यानी टीचर जो है वो सिंपली जस्ट speaking and speaking and speaking and speaking. No. I mean, give some chance to the students to speak as well, because they have the knowledge, they have the information, they live in the society, so definitely they have the exposure to the sources of knowledge. तो इस तरह से जब शिक्षक और शिक्षार्थी मिलकर ज्ञान की रचना करते हैं, आगे बढ़ते हैं, टीचिंग लर्निंग का काम संयुक्त रूप से आगे बढ़ाते हैं, तो दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. जाहिर सी बात है कि इफ यू बिलीव इन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच तो डेफिनेटली यू विल हैव डेमोक्रेटिक एटीट्यूड. तो जाहिर सी बात है कि वो क्लासरूम का जो माहौल होगा वो बेहतर होगा. इट विल नॉट बी मोनोटोनस, उबाऊ नहीं होगा, पकाऊ नहीं होगा, आई मीन समहाउ इंटरैक्टिव होगा, अच्छा होगा. यू विल एंजॉय द कंपनी ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स विल enjoy the company of you. So in my opinion, in a nutshell, if I say university culture, academic ability of the student, the resources with which you are blessed at your colleges and universities, the teaching skills and attitude that you have, and finally the constructivist approach, these are the 5 important factors that affect the quality of your lecture. With this, my friends, let's come to the next slide. And now in this slide, I want to tell you people the components of a lecture. So can you see the slide, my friends? Yes, sir. 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 Please move. So, my friends, whether I am जी sir. or you are delivering a lecture or anyone is delivering a lecture, definitely these 5 components will be there in that lecture. जी. देखें 5 कंपोनेंट को. This figure has not been taken from anywhere. ये फिगर मैंने खुद से बनाई. पहला कंपोनेंट जो है वो जाहिर सी बात है कि टीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द लेक्चर. Second one is content. You can see the triangular material. Third one is channel. Fourth one, the students. And fifth one, the distorted material received. ये 5 कंपोनेंट हमारे लेक्चर में होते हैं. अब पहला कंपोनेंट आप देखिए कि एरोज आर आउटसाइड. कैन यू सी माय फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you tell me what I want to show through these arrows? Yes. Sir, this is this picture is the information. Teacher is the source of information.
Oh, It shows please. learning Please. skills environment. Teacher delivering the information for both At least. dull student and meritorious student. That's it. That's it. Thank you, my friend. Please mute yourself. So see, arrows are outside, and through this I want to convey that information and knowledge is flowing from the teacher and going out. इस तरीके से अगर चौथे कंपोनेंट पर आप देखें स्टूडेंट्स को, तो यू विल फाइंड दैट एरोज आर कन्वर्जिंग, यानी गोया कि ज्ञान जो है वो सब जा रहा है बच्चे के दिमाग में. तो दैट्स व्हाई इन कंपोनेंट 4 एरोज आर इनसाइड एंड इन कंपोनेंट 1 एरोज आर आउटसाइड. तो शिक्षक की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी यूटिलिटी है, देयर इज नो नीड टू से. जस्ट थ्रू वन स्टोरी आई हैव ट्राइड टू प्रूव कि हाउ इंपॉर्टेंट ए टीचर इज. अब एक और दूसरा इंसिडेंट सुनिए, बड़ा मजेदार, दैट्स क्वाइट फनी इंसिडेंट एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट. So you know, I joined the college at a very young age, at the age of 24 in fact. So there was one of my friend who was on the verge of retirement. I think his age would have been perhaps 58, 59. So a huge, I mean age difference was there. 32, 33 years का difference था मुझ में और उनकी age में, लेकिन we were good friends. So that my friend, you know, he used to teach organic chemistry. तो आप लोग को मालूम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, रिएक्शंस होते हैं. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, so he was a very poor teacher. And why I am using the word poor? Because he never interacted with the students, never asked any question, never tried to know whether students are getting in or not. So he followed a very stereotyped routine. क्या करते थे कि जब वो क्लास में जाते थे, so what he did in fact, first of all, he opened the register. और उसके बाद अटेंडेंस लेते थे. After taking the attendance, he closed the register and he used to wear the coat, and in the pocket of his coat there were so many papers. और सारे papers पे वो organic chemistry के reactions और mechanisms जो वो लिख के रहते. So what he did, just took one paper out from his coat, went to the board and gave the heading. और हेडिंग देने के बाद जो भी पढ़ाना होता था उसकी हेडिंग लिखते थे, और फिर उसके बाद वो रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स लिखते रहते. तो जस्ट राइटिंग, रबिंग, नेवर ट्राई टू नो वेदर स्टूडेंट्स आर गेटिंग हिम और नॉट. I mean what's their problem, what's their confusion, whether they're listening to me as well or not, but just writing, rubbing, silently, just writing, rubbing. So on one fine day he went to the classroom, followed the same stereotyped routine, that is, opened the register, took the attendance, closed the register, took one paper out from his pocket, went to the board and gave the heading ethane. So you know, ethane is a gas, and usually it is taught to undergraduate students of all the universities in India. Its formula is C2H6. So likha heading this ethane, and in bracket C2H6. Now he started writing the reactions and mechanisms. So physical properties of ethane, color of ethane, density of ethane, chemical properties of ethane, how ethane reacts with chlorine, how ethane reacts with fluorine, all those things. So you know, a person who is teaching some content from the last 20 years, 25 years or 30 years, so definitely he or she will be remembering each and everything. So after a few minutes, he thought that remaining reactions I remember. So he came to the table, kept the paper over there, and went back to the board and started completing the reactions and mechanisms. So meanwhile, there were so many naughty students in the classroom. So one student came forward, took his paper and ran away. My friends, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, we are listening, sir. Yes, sir. We are listening. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Student शरारती स्टूडेंट था, वो आगे आया और टेबल पर जो रखा हुआ था उसको उठाया और भाग गया. And the teacher was so engrossed in writing that even he didn't pay attention that someone has stolen my paper. So after 2 or 3 minutes,
he came back to the table and found that my paper has been stolen. Someone has stolen my paper. So he became very angry. He took another paper from his coat and said, "Oh, you ran away with ethane. Now I'm going to teach methane." My friends, कहा कि मीथेन लेके भाग गए। अच्छा कोई बात नहीं, अब मीथेन पढ़ाऊंगा। You know, went to the board, gave the heading methane. So instead of C2H6, now it was CH4, and the remaining things were same. पहले था color of methane, now it was color of methane. पहले था density of ethane, now it was density of methane. Earlier it was how ethane reacts with chlorine, now it was how methane reacts with chlorine. I mean everything was same. Just instead of C2H6 it was CH4. तो जब मुझे इस घटना के बारे में पता लगा, तो हालांकि वो मुझसे उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर वो लड़का इथेन लेके भाग गया तो आप मीथेन शुरू कर दिए। और सर पहले हम लोग मीथेन पढ़ते हैं, बाद में इथेन पढ़ते हैं जी। पहले सर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में मीथेन पढ़ते हैं, बाद मीथेन पढ़ते हैं। हाँ कोई बात नहीं, जो भी CH4 and C2H6। जी जी जी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर वो इथेन लेके भाग गया तो आप मीथेन शुरू किए और क्लास बेंजीन शुरू होना चाहिए था सर। भारतीय स्टूडेंट हैं, तो अगर कोई मीथेन लेके भी भाग गया होता तो आप क्या करते? तो उन्होंने कहा डॉक्टर जमाल चिंता की कोई बात नहीं है, मेरी कोट में प्रोपेन और ब्यूटेन है। ब्यूटेन शुरू कर देते। हाँ वो बहुत था। वो तो सारी केमिस्ट्री पढ़ा देते फिर। Now my friend, think for it. It was a funny story. It was a real story. Just think for it. ये जो घटना मैं सुना रहा हूँ आपको 2001 की, that is 22 years back. So such type of teachers survived in that period. Now, do you think such type of teachers will survive today? What's your opinion? क्या आज के समय में ऐसे शिक्षक सर्वाइव करते हैं? नो सर, नो सर, नो सर। सर एक गाइडेंस हमें चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, This is not at all possible. राइट सर एक चीज हमें बता दें सर, हमें नोट्स देके पढ़ाने की आदत हो गई है, कैसे छोड़े? आई एम स्टैटिस्टिक्स टीचर। अभी बताता हूँ सर, आप मुझे पहले खत्म करने दीजिए। आई विल गेट यू एम्पल टाइम, डोंट वरी। पहले मुझे बोल लेने दीजिए जो मैं सोच के आया हूँ बोलने। ओके so earlier such type of teachers survived simply because students के पास किताबें नहीं होती थी या किताबें कॉस्टली होती थी, इंटरनेट के सोर्स थे ही नहीं, तो वो बेचारे के लिए इम्तिहान पास करना लाले पड़ जाते थे उसके। तो इसलिए वो क्लास में आके 40 मिनट बैठा रहता था कि चलो कम से कम कुछ तो मिल रहा है, नोट से मिल जाएंगे, मैं याद कर लूंगा, इम्तिहान में लिख दूंगा, पास हो जाऊंगा। बट टुडेज स्टूडेंट विल नॉट टॉलरेट सच टाइप ऑफ टीचर बिकॉज दे हैव एक्सेस टू द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। सो माय फ्रेंड्स, रिमेंबर, आउट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए लेक्चर, you yourself, your personality, the knowledge that you deliver, your way of delivering somehow is most crucial and most important. अब second point पर आइए, content. I don't have say much to content, क्योंकि आप अपने content को अच्छे तरीके से पढ़े हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। So suppose you teach zoology. So I think 12 years till class 12th you have studied zoology. 3 years in graduation you have studied zoology, 15 years, 2 years of PG, further it is 17 years, and 3 or 4 years of research. तो 20, 21, 22 साल तक आप जरूर अपना कंटेंट पढ़े हैं, there is no doubt about it. The only thing is that knowing the content is different and communicating it, conveying it to the student is different. तो कैसे कन्वे करेंगे effectively? Definitely my whole talk is based on that. So in the remaining slides I will try to just let you know how to communicate effectively. तो लेकिन कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कंटेंट पर आपकी पकड़ है, आपकी मास्टरी है, आप कंटेंट को अच्छे तरीके से जानते हो, तो डेफिनेटली यू कैन डिलीवर, देयर इज नो डाउट। नाउ कम टू द थर्ड कंपोनेंट, चैनल। चैनल से जो मेरा मतलब है वो मीडियम है। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट यू हैव टू यूज सम मीडियम। So that medium might be simply chalk and duster. That medium might be PPTs and LCD projector. That medium might be Google Meet platform or I mean Zoom or anything else. I mean, in order to communicate, definitely you have to use some medium.
लेकिन एक ट्रेंड जो मैं देख रहा हूं पिछले कुछ सालों से चल रहा है, people used to say when PPT is on, mind is off. My friends, Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, mind is on. Yes, sir. Yes, sir. We are. Yes, sir. Absolutely true, Yes, sir. sir. Absolutely. Yes, sir. पर आई एम श्योर कि बिल्कुल सही बात है। पर आई एम श्योर कि मेरे सेशन में ऐसा नहीं हो रहा होगा कि आपका माइंड ऑफ हो गया हो। नो सर। No, sir. 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 लिसन टू, देखिए ये पीपीटीज मैंने बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई है। तो क्या अगर ये पीपीटीज नहीं चलेंगी तो मैं बोल नहीं सकता हूं? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस पीपीटीज हैव बीन मेड बाय मी। और देखिए पीपीटी मुझे सप्लीमेंट करने के लिए, पीपीटी मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे रिप्लेस करने के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वुड नॉट हैव कम टू दिस प्लेस टू डिलीवर दिस लेक्चर और मैंने सिर्फ अपनी पीपीटीज आपको भिजवा दी होती, तो हैव यू एंजॉयड दिस लेक्चर? बताइए। नो सर। No, sir. No, No, sir. No, sir. No, sir. प्लीज देखिए, यूज चैनल, यूज मीडियम, but that should only help you, that should only supplement you, it should not replace you, it will never replace you. अब क्या होता है, सेमिनार वगैरह में मैं जाता हूँ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, when time is limited, just 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes, people come with 60 slide, with 50 slide, whole of paragraph is written on the slide, and my goodness, वो स्टूडेंट्स या जो लिसनर सामने बैठे हुए हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या आयतन कुर्सी पढ़ रहे हैं। अरे बाप रे बाप, अभी तो 5 स्लाइड गई है, अभी 55 बची है, 10 स्लाइड गई, अभी 50 बची है। I mean, there's no use of PPT in that way. पीपीटी का इस्तेमाल तब बेहतर होगा जब आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, तो यू आर द मेन प्लेयर, जस्ट पीपीटी विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ साइड हीरो। अब साइड हीरो को आप हीरो बना दे और आप खुद साइड हीरो बन जाए, तो आई थिंक दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो चैनल का इस्तेमाल करें, लेकिन हैवी रिलायंस ऑन द चैनल इन माय ओपिनियन इज नॉट डिजायरेबल। कम टू द फोर्थ कंपोनेंट, स्टूडेंट्स, poor students. And why I'm using word poor? Because after delivering a lecture of 40 minutes or 1 hour, you come to the staff room, you have a glass of water, you have a cup of tea, आप अपने दोस्तों से गप्पे मारते हैं और आप फ्रेश हो जाते हैं। What about these people? बेचारे सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। एक टीचर सुना के गया, दूसरा टीचर आया, दूसरा सुना के गया, तीसरा आया, तीसरा सुना के गया, चौथा आया, और आप 8 तारीख से ये फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। आई एम क्वाइट श्योर माय फ्रेंड दैट यू विल एग्री विथ मी दैट लिसनिंग इज वेरी डिफिकल्ट, isn't it my friend? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Especially online listening. तो सर मन में प्लास्टिक घुसा हुआ, अभी ये टीचिंग घुस गया। उस साइड में और इस साइड में बहुत अंतर रहता है। जी सर। आसान है, सुनना कठिन है। अपने आप में मान। बिल्कुल ऑनलाइन सुनना तो और भी डिफिकल्ट है सर। बिल्कुल, प्लीज क्योंकि आंखें भी हो जाती हैं। सो लिसनिंग इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो प्रोग्राम आप अटेंड करके जाएंगे, तो आप अपनी व्यथा, आप अपनी प्लाइट और जो तकलीफ जो हो रही है सुनने में, उस बात का एहसास रखिएगा कि हमारे स्टूडेंट भी ऐसे ही झेलते होंगे, हमको कितना मुश्किल है सुनना। तो कम से कम इस लायक हम बने कि हमारी बात को सुना जाए। सो यू नो, स्टूडेंट्स आर द फोर्थ कंपोनेंट, दैट इज द रिसीवर्स, द लिसनर्स, एंड फाइनली द डिस्टॉर्टेड मटेरियल रिसीव्ड। अब जरा सा आप गौर से फिगर देखें, तो जो सेकंड कंपोनेंट था, दैट वाज अ ट्रायंगुलर टाइप ऑफ शेप, बट द फिफ्थ कंपोनेंट इज पेंटागोनल इन शेप। एंड थ्रू दिस व्हाट आई वांट टू कन्वे कि इस दुनिया में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो 100% कन्वे कर पाए, हो ही नहीं सकता ऐसा। सर्टेन काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन इज देयर। पहुंचाना चाहते थे कुछ, स्टूडेंट्स तक पहुंचा कुछ। एंड देयर इज one study that was conducted by me long back.
और काफी उस स्टडी से मुझे एकेडमिक वर्ल्ड में रिकॉग्निशन भी मिला। उस स्टडी से मैंने प्रूव किया कि टीचर जो कम्युनिकेट करना चाहता है हार्डली उसका 20% स्टूडेंट्स तक पहुंच पाता है। 20% भी अगर हम पहुंचा देते हैं तो हम अच्छे टीचर हैं। What to talk of, I mean more than 20. Most of the time it is 5%, 8% है बस। तो ये डिस्टोर्शन जो है वो डेफिनेटली होगा, लेकिन इस डिस्टोर्शन को कम किया जा सकता है। हाउ टू रिड्यूस दिस डिस्टोर्शन, हाउ टू डिलीवर ए गुड लेक्चर, हाउ टू मेक एन इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन। तो इसके लिए आगे की स्लाइड्स में मैं आपके सामने बातों को रखता हूं। इससे पहले एक और बात है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड अगेन इट इज बीइंग शोन ऑन दिस स्लाइड। क्या आप इस स्लाइड को देख पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देख रहे हैं Please, यस सर 90%। Yes, sir. 3 years back, I got a PhD thesis from a very reputed foreign university. काफी अच्छी thesis, काफी अच्छा काम किया था रिसर्चर ने इसमें। छुट्टी के लिए छुट्टी मिली हुई है। That study was conducted on retention। और रिटेंशन किसको कहते हैं आपको मालूम है? कि आपको कोई चीज बताई गई, सुनाई गई, आपने कोई चीज पढ़ी, so how much of that you can reproduce or recall after a gap of 24 hours or after a gap of 1 week or after a gap of 1 month or after a gap of 1 year. So that is technically known as retention। ये जो थीसिस मेरे पास आई थी उसमें रिसर्चर ने रिटेंशन स्टडी किया था आफ्टर 24 आवर्स। So what that researcher did, marvelous job he did. In fact, it was very good study. What he did, he divided the student of a particular class in 7 groups। यानी 50 की स्ट्रेंथ थी क्लासरूम की। तो उसने क्या किया कि 7 करके 6 ग्रुप में और 1 ग्रुप में 8 स्टूडेंट। तो इस तरह से 50 को डिवाइड किया उसने 7 ग्रुप्स। And he taught himself the same topic to all the group। यानी 7 अलग अलग ग्रुप हो गए, 7 को सेम टीचर ने यानी उस रिसर्चर ने पढ़ाया, सेम टॉपिक पढ़ाया, लेकिन तरीका अलग अलग अपनाया। So the first group was taught through lecture method, second group was not taught rather they were instructed to go to the library and read themselves। थर्ड ग्रुप को ऑडियो विजुअल एड की हेल्प से उस रिसर्चर ने पढ़ाया, फोर्थ ग्रुप को डिमॉन्स्ट्रेशन की हेल्प से पढ़ाया, फिफ्थ के लिए डिस्कशन को इनिशिएट किया क्लासरूम में, सिक्स्थ ही प्रोवाइडेड द चांस ऑफ प्रैक्टिस बाय डूइंग, एंड द लास्ट ग्रुप इन फैक्ट अगेन ही डिडंट टीच मगर इंस्ट्रक्टेड कि तुम प्रेजेंटेशन तैयार करके लाओ, पीपीटीज वगैरह तैयार करके लाओ और इसको प्रेजेंट करो अपने साथियों के सामने। एंड देन बाय यूजिंग सम एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक he calculated the retention। My friend, you can see the slide and retention rate is written in percentage। So it will be astonishing for you that so far as retention is concerned, in fact, lecture was the poorest method। सबसे poor method lecture था जिसमें सिर्फ 5% retention report हुआ। Even reading was twice as better as lecture so far as retention is concerned। इसमें retention 10% आया, ऑडियो विजुअल एड में 20% आया, डिमॉन्स्ट्रेशन में 30% आया, डिस्कशन में 50% आया, और प्रैक्टिस बाय डूइंग में काफी अच्छा आया 75%। एंड हाईएस्ट रिटेंशन वाज रिपोर्टेड इन दैट ग्रुप व्हिच वाज अगेन नॉट टॉट बाय द रिसर्चर, रादर दे वर इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर पीपीटीज एंड प्रेजेंट बिफोर देयर पीयर्स। तो उसमें 90% जो है वो रिटेंशन आया। This study has lot of implications for us as a teacher। Now we as a teacher most of the time rely heavily on delivering the lecture, and we have to, because my friends, we have a huge syllabus to cover, we have so many students in the classroom and we have least resources in the classroom। तो ऐसी परिस्थितियों में लेक्चर के अलावा कोई और मेथड हमारे पास नहीं है। लेकिन what I am saying and what this study implicates for us,
कि you use lecture, but you supplement your lecture through reading, through audio visual aid, through demonstration, through discussion, through practice by doing, and through presentation. So everywhere you see audio visual aid is not possible. Everywhere discussion is not possible. In every topic demonstration is not possible. Of course, in every topic practice by doing is also not possible. लेकिन अगर कुछ इसमें से इन 6 में से कुछ भी कहीं भी गुंजाइश है, if you can do it, definitely it will reduce the distortion which I just mentioned in the previous slide, as well as it will make your classroom interesting and interactive and make the students responsive. अब इन परिस्थितियों को, इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। मैंने आपके सामने सबसे पहले बात कही कि कौन से 5 फैक्टर्स हैं जो आपके लेक्चर को अफेक्ट करते हैं। दूसरी बात जो मैंने कही वो ये कि आपके लेक्चर के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तीसरी स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया जो स्टडी ने रिटेंशन को रिपोर्ट किया। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखिए और अब आते हैं हम क्लासरूम में कि हम कैसे अच्छा लेक्चर डिलीवर करें। सो जस्ट सम पॉइंट्स हैव बीन मेंशन्ड फॉर यू पीपल। आप लोग जरा अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को देखें। डेफिनेटली आई विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन डेफिनेटली ये आपके लेक्चर को अच्छा बनाएंगी, इंटरेस्टिंग बनाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स। सो 7 पॉइंट्स आर मेंशन्ड एट दिस स्लाइड और मेरे ख्याल से 5-6 और हैं जो अगली स्लाइड में है, तो एक एक करके उनको कवर करता हूं। फॉरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब जुलाई में क्लासेस शुरू होती हैं, अगस्त में क्लासेस शुरू होती हैं, तो वी आर क्वाइट स्लो, हम भी हमारे स्टूडेंट्स भी। अब ऑल ऑफ सडन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नोटिस आ गई कि भाई दिसंबर से सेमेस्टर एग्जाम शुरू होगा। तो अब जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने में तो 1 यूनिट पढ़ाए। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 1 मंथ, दैट इज अक्टूबर या दैट इज नवंबर। तो पूरी हमारे पास 4 यूनिट थी, तो अभी 3 यूनिट बची है, तो हम बाकी 1 महीने में 3 यूनिट पढ़ाए, यानी 3 महीने में 1 यूनिट पढ़ाए और बाकी 1 महीने में हम 3 यूनिट पढ़ाए। तो वी माइट फिनिश बट इट विल बी ऑफ नो यूज टू द स्टूडेंट्स। आपको जब पहले दिन क्लास अलॉट हुई है, आपको मालूम है कि इट इज द मंथ ऑफ जुलाई एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर सेमेस्टर एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड और इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च एकेडमिक एनुअल एग्जाम विल बी कंडक्टेड। तो एक रफ कैलकुलेशन आप कर लीजिए कि हाउ मेनी डेज यू आर ब्लेस्ड विथ, एंड देयर आर 4 यूनिट्स इन योर सब्जेक्ट। इन एवरी यूनिट देयर आर 10 टॉपिक्स, so 40 topics. So 40 topics 180 days और 40 topics 90 days और 40 topics 60 days। इसी हिसाब से आप उसको डिवाइड करके करिए। बहुत तेज पढ़ाएंगे तो भी कुछ हासिल नहीं होगा, बहुत स्लो पढ़ाएंगे तो इट विल बी कंज्यूमिंग लॉट ऑफ योर टाइम। सो समहाउ यू नो कवर ओनली दैट मच विच यू मे डू इन 40 मिनट। बहुत ज्यादा प्लान करके ले जाएंगे तो फिर उससे कुछ हासिल नहीं होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी वजह से हमारे लेक्चर्स बेसिकली लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं और बहुत जल्दी बददिली पैदा हो जाती है, बोरिंग हो जाता है लेक्चर या बिल्कुल मोनोटनी पैदा हो जाती है। तो समहाउ योर पेस मैटर्स। तो पेस ना तो बहुत फास्ट हो ना तो बहुत स्लो। ट्राई टू कनेक्ट द पास्ट विद प्रेजेंट। सो व्हाट द साइकोलॉजिस्ट से इन फैक्ट, इफ टीचिंग विल प्रोसीड इन ए स्पाइरल वे, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी आज का ज्ञान बीते हुए कल से कनेक्ट करें एंड डोंट स्टार्ट एब्रप्टली, डोंट फिनिश एब्रप्टली, रादर गिव ए क्लू व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुमारो। तो आज का ज्ञान बीते हुए कल से भी कनेक्ट हुआ और आने वाले कल से भी कनेक्ट हुआ। इन दैट वे इफ द नॉलेज विल प्रोसीड, टीचिंग विल प्रोसीड इन एन स्पाइरल वे, तो ये इफेक्टिव होगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, motivate the students to learn with interest and let them feel the need of the knowledge। क्या मतलब हुआ इसका? आप तमाम लोग टीचर्स हैं, जरा मुझे बताइए, समझाइए। लगातार मोटिवेशन देते रहना चाहिए, किस तरह से अपने लेसन की तरफ आगे बढ़े। अच्छा, और कोई बात? yourself rather than feeding them. Spoon feeding is not working. You can do something. रुचिकर बनाना जरूरी है। जो ज्ञान बच्चा ले रहा है, छात्र ले रहा है, उसे क्या जरूरत है, उसे फील होना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, रुचि होनी चाहिए।
That's it. Thank you, इंटरेस्टिंग आप ही एक इंटरेस्टिंग ऐसा करना ताकि बच्चे को पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं या कुछ बनने के लिए पढ़ रहे हैं, Correlate with the nature. वो इंटरेस्टिंग उसकी बनाना, उपयोगिता को समझ पाए। शिक्षा को रुचिकर बनाना, Okay. नीड ऑफ नॉलेज। जैसे सर आपको जैसे सर बहुत सारे बच्चे 4 घंटा क्रिकेट पे अपना समय बर्बाद करते हैं, तो उन्हें बताइए कि विराट कोहली अपना काम ठीक से कर रहा है, तुम अपना काम ठीक से करो, तुम क्यों उसके काम को तुम बैठ के 4 घंटा अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो जैसे मतलब जैसे सारे लोगों ने वैज्ञानिकों के काम पर बधाई दी, तो वैज्ञानिकों ने अपना काम ठीक से किया, इसके लिए ध्यान दिया। को समझ सके। बहुत बढ़िया उदाहरण सर। मेरा मानना है कंटेंट के साथ में सर मोटिवेट लगातार करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंटेंट। Please mute yourself. Please mute yourself. Students It is 11:50 by my watch. आप 11 बजे से मुझे सुन रहे हैं, राइट माय फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, क्यों सुन रहे हैं बताइए? yes, sir. Why you listening to me? We want to learn something. Okay, please mute. सर क्वेश्चन आया भी आपका शिक्षा रुचिकर नहीं है सर। सर प्रश्न जो पूछ रहे हैं उससे हमें इंटरेस्ट आ रहा है। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखिए हाँ फोकस कर रहे हैं बिल्कुल कि हाँ आप जो प्रश्न उत्तर वाला सेशन जो बीच बीच में आप चला रहे सर, तो हमें इंटरेस्ट आ रहा है। हमारा माइंड जो सोचने के लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सर हम सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं और इंटरेस्टिंग भी लग रहा है सर। अपने शिक्षा कौशल को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। जो नॉलेज हम आपसे गेन कर रहे हैं, अगेन वो नॉलेज हम आगे अपने स्टूडेंट्स को कन्वे कर पाए। अच्छा, आप म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए, मेरी बात सुनिए। पहली स्लाइड जो इंट्रोडक्टरी स्लाइड थी उसी में मैंने ब्रीफली बता दिया था कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू। बताइए, सच बात है ये नहीं? Yes, sir. और और one by one, all the slides which have been presented before you, those were interesting, isn't it? यस सर। Yes, sir. आप शिक्षक हैं मेरे भाइयों बहनों, शिक्षकों को सुनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप सुन रहे हो सिंपली बिकॉज यू हैव बीन सेंसिटाइज्ड कि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं सब आपके काम आएगा, सब आपके काम आएगा, कोई भी चीज बेकार नहीं है, isn't it? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस सर। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। सर। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। Whatever the theories you are going to teach, whatever the models you are going to teach, whatever the content you are going to teach, अगर एक बार एहसास दिलाने में पैदा हो गए, आप एहसास पैदा करने में आप कामयाब हो गए बच्चों में कि हाँ ये जो ज्ञान है इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल है, फायदा है, फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपकी बात भी सुनेंगे और ना किसी आपकी बात को सुनेंगे, रादर दे विल गो टू द गूगल, दे विल गो टू द लाइब्रेरी और उसको बारे में फर्दर ज्ञान दे करेंगे। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट मोटिवेटिंग देम कि whatever is going to be taught in the classroom, it has some relevance for them in their life। तो मुझे लगता है कि ये बाकी काम जो भी बहुत आसान हो जाएगा। Coming to the point number 4, if possible, अगर आपका कंटेंट इस तरह का है जिसमें पिक्चर कुछ दिखाई जा सके या वीडियोस दिखाई जा सके, और आज के दौर में सिंस यू एंड योर स्टूडेंट्स बोथ आर ब्लेस्ड विद स्मार्टफोन, तो ये सारी चीजें हम आराम से कर सकें। अगर गुंजाइश है तो जरूर करिए, ये लेक्चर की मोनोटोनी को ब्रेक करता है, लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करें कि भाई जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो तुम नोट करते जाओ इसको। आई मीन इट माइट हैपन कि बीच बीच में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊं जिसको कि तुम कहीं और से हासिल ना कर पाओ। आई मीन इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट दैट फ्रॉम समवेयर एल्स, तो इस वजह से उनको नोट करो। तो जब वो नोट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बातों को सुनेंगे भी, देयर इज नो डाउट। पॉइंट नंबर एफ एंड पॉइंट नंबर 2, यूज प्रॉपर आई कंट्रोल एंड मेक द राइट पोस्चर। तो आपकी क्या राय है इन दोनों पॉइंट्स पे कि क्या आई कंट्रोल और पोस्चर मैटर करता है? आपकी क्या राय है? बिल्कुल सर। Yes, sir. अगर हम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में होते हैं तो हमें यस सर, मैटर करता है।
करता है अच्छा काफी मैटर सर अच्छा करता है। अब करता है एक आप जरूरी है। सर आई कांटेक्ट से पता चलता है कि बच्चे मेरी बात को सुन रहा है या नहीं। बस एक आप में से कोई भी ये बताए कि आई कंट्रोल क्या मैटर करता है, कैसे मैटर करता है, बस कोई एक बताए, फिर मैं बताता हूँ। It gives us idea that how much is understanding and how much interested they are, so we can understand them well. Attention or not? Okay, please mute yourself. Sir, it is develop the confidence in students that they are getting or not. Okay, please mute yourself. See, eye control is very important. If you are giving an image that each and everyone in my classroom, each and every student of my classroom is under the purview of my watchful eyes. मेरी आंखों के दायरे में हर कोई है, मैं हर किसी को देख रहा हूँ, तो definitely so many discipline and all those problems which are there in the classroom will be minimized. और क्या होता है कि इसमें भी मैंने कुछ शिक्षकों को देखा है, since I am a teacher educator and my job is to train the teacher, तो मैंने देखा कि दो तरह के शिक्षक पाए जाते हैं। इनफैक्ट पहली कैटेगरी उन टीचर्स की है जो क्लासरूम में किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। आई मीन समवन इज सिटिंग ऑन द बैक बेंच, समवन इज सिटिंग इन राइट कॉर्नर, और समवन इज सिटिंग इन द लेफ्ट कॉर्नर, और समवन इज सिटिंग एट द फ्रंट। एक स्टूडेंट का चेहरा सेलेक्ट कर लिए और पूरी एनर्जी उस पर लगा देते, उसी को देखते हैं, उसी को देख के पढ़ाते। अब जाहिर सी बात है कि बाकी जो क्लासरूम में स्टूडेंट है वो भी चाहते हैं कि सर हमारी तरफ देखें, लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान नहीं है उनका। तो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कपलेट इन उर्दू दैट आई विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश एज वेल। आप इसको सुनिए, बहुत अच्छा है कि जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, those who are thirsty they are getting less and less. जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जो न पी सके उन्हें दम बदम। Those who have taken too much, further you are pouring water in their glass. जो न पी सके उन्हें दम बदम। मेरे साकिया तेरे मैं कदे का निजाम है कि मजाक है। साकी कहते हैं उसको जो शराब पिलाता है। तो जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जो न पी सके उन्हें दम बदम। मेरे साकिया तेरे मैं कदे का निजाम है कि मजाक है। अब वो जिसको आप देख रहे हो कंसंट्रेट हो करके, जिस स्टूडेंट को, उस लड़के के या लड़की की नाक में खुजली हो रही है तो बेचारा खुजला नहीं सका। क्यों? क्योंकि टीचर उसे देख रहा है। अभी बताता हूँ, अभी मैं चैट बॉक्स में लिख दूंगा, पहले मुझे बोले नहीं दीजिए सर। हाँ ओके सर। सर एक बार दोबारा बोल दो। जरूर, अभी मैं चैट बॉक्स में लिख दूंगा, आप नोट कर लीजिए। तो दिस इज वन कि एक या दो स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया और पूरी एनर्जी उसमें लगा दी। दूसरी कैटेगरी उन टीचर्स की है जो कंटिन्यूअसली अपना सर घुमाते रहते हैं या बार बार आंख घुमाते रहते हैं। These two are two extremes. आप कोशिश कीजिए कि पूरी क्लास को अपनी नजरों में, अपनी आंखों में रखें। तो ठीक है, कभी कोई पसंद का स्टूडेंट है, रिस्पॉन्सिव है, इंटरेक्टिव है, अच्छे से जवाब देता है, तो थोड़ा उस पर ज्यादा भी ध्यान दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट एक्सट्रीम इज नॉट गुड। पोस्चर इन क्लासरूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर फिर दो एक्सट्रीम तरह के लोग पाए जाते हैं शिक्षक। एक शिक्षक वो होते हैं जो पोडियम पर पहुंच गए तो पोडियम को ऐसा मजबूती से पकड़ लिए कि अगर चिड़िया उनके सर पे घोंसला बना दे तब भी हटते नहीं है वहां से। माय फ्रेंड्स, Yes sir, yes sir. बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। लोग पता नहीं चाहते माइक, बिल्कुल लोग नहीं चाहते हैं, इसका मतलब मामला ठीक है। दूसरी कैटेगरी उनकी है जो कंटिन्यूअस मूव करते रहे। माय फ्रेंड्स, यू आर टीचर, रिमेंबर, इफ यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग एंड यू आर मूविंग आल्सो, बोलेंगे भी और चलेंगे भी तो वो स्टूडेंट के समझ में नहीं आएगा। When you are explaining something, you occupy the central position in the classroom from where everyone can see you and you speak, you explain. जब explanation खत्म हो जाए
students are noting down something from the board or you have given some question for them to solve, तो उस टाइम में आप रोज में मूव कीजिए, कॉलम्स में मूव कीजिए, उस जहां पर जिस तरह से आप चाहे मूव करना कर लीजिए। लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन देंगे और मूव करेंगे तो इट विल क्रिएट chaos. So while explaining you remain in standing position. Rest of the matter, I mean there is no problem, आप देख लीजिए, आप मूव कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो आई कंट्रोल है और राइट पोस्चर है वो मैटर करता है। इसी कंटिन्यूटी में पॉइंट नंबर H जो है वो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, बहुत क्विकली इनको कवर करता हूं, फिर अभी कुछ और बातें आगे करनी है मुझे। तो पॉइंट नंबर H, यूज एप्रोप्रिएट जेस्चर्स। तो इसका क्या मतलब है, आप लोग जरा मुझे गौर से देखिएगा, बिल्कुल गौर से देखिए, मुझे बिल्कुल गौर से देखिए। There was one of my student who was teaching geography, तो ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तो बता रहा था कि हिमालय इज ए बिग माउंटेन, बिग माउंटेन, हिमालय इज ए बिग माउंटेन। Another of my student who was teaching biology, he was teaching, dear students, in the summers when we sweat, very minute, very small bacteria are produced on our body. My friends. Sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए बच्चों ने हिमालय समझा और बैक्टीरिया समझा, isn't it? Yes, sir. So they are not attentive towards your words, they are more attentive towards your gestures. तो gestures बहुत important है, body language बहुत important है, and so many messages are communicated by your body languages. So in my opinion we have to use appropriate gestures, make effective use of voice. आप कहते हो कि मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा था और क्लास में लड़का सो रहा था, तो लड़का क्यों सोता है? सिंपली क्योंकि 7, 8, 10 मिनट जब आप सेम पिच, सेम टोन, सेम आवाज बोलते हो तो वो बच्चे को लोरी लगने लगती है, तो आप लोरी सुनाते हो तो फिर तो आपकी आवाज बहुत इंपॉर्टेंट। सर आप थोड़ा सा कैमरा इन योर वॉइस, सर योर इंटोनेशन, ये सारे कैमरा थोड़ा पीछे कर लें सर, पूरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है आपका सर, प्लीज। अच्छा मैं पीछे हो जाता हूँ, आप बताइए, आप दिख रहा हूँ? हाँ सर, हाँ ठीक है, अब ठीक है सर। Yes, sir. अभी कभी शायद टीचर को भी नींद आ जाता है, तब क्या किया जाए? रात में 2 बजे तक काम किए हैं और सुबह तो अभी बताता हूँ, अभी उसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, तो फिर आप समझ जाएंगे। राइट, तो आपकी वॉइस जो है वो दैट मैटर्स। सो क्या हुआ, 1 मिनट जी। सो योर पिच, योर इंटोनेशन, मॉड्यूलेशन इन द वॉइस somehow matters. ये मजहर साहब सेटिंग कर रहे हैं शायद कैमरे की कुछ। अब सही है सर, सर अब सही है, अब बहुत अच्छा सर, अब एकदम सही है सर। Right. Thank you sir. So your voice, your pitch, your intonation, modulation of the voice, ये मैटर करती है। Sometimes purposeful silence in the classroom also conveys a lot of things. तो मेरे ख्याल से आपकी वॉइस जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वॉइस का अच्छा इस्तेमाल आपको करना चाहिए। Finally, encourage interaction with the student, and the best way to interact with the student is through questions. आप क्वेश्चन पूछिए, आपका क्वेश्चन पूछने का मन नहीं है, नो प्रॉब्लम, उन्हीं को एनकरेज कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, कुछ तो कहें, या वो भी नहीं कर सकते तो ठीक, अच्छा 5-10 मिनट में लास्ट में मैंने क्या पढ़ाया है, क्या बताया है, जस्ट यू टेल द जीस्ट ऑफ दैट। यानी समहाउ आप मुस्तकिल बोलते रहेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट मोनोटोनी। तो अगर थोड़ा मोड़ा ही वो बोलेंगे 30 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए भी, तो somehow that monotony will be broken. So try to encourage interaction with the students. Point number K, I already have explained. Point number L, I also have explained. Evaluate the understanding of the students deductively. So what I prefer, in fact, when I go to the classroom, so I introduce the lesson inductively. Induction में हम क्या करते हैं,
एक एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, तीसरा देते हैं, चौथा देते हैं, पांचवा देते हैं, एंड देन फाइनली वी कम टू सम कंक्लूजन, वी कम टू सम रूल। इसका उल्टा डिडक्शन है, यू गो एंड टेल द रूल एंड देन टेक द एग्जाम्पल टू प्रूव दैट रूल। तो जब शुरुआत करें, द मोमेंट यू आर बिगिनिंग योर लेसन, द मोमेंट यू आर बिगिनिंग योर लेक्चर, तो प्रिफर टू स्टार्ट इंडक्टिवली, ask the questions and then come to some conclusion. And when you are finishing, prefer deductively, let them tell what they have understood. So I think these points will be quite effective in order to improve the quality of your lecture in your classroom. So with this, my friends, I have some more points to share with you people, and definitely supplement your lecture with brainstorming, cooperative learning, open educational resources, blended approach of learning, and of course mind map, active learning, Z2A technique and shape technique. So these 7-8 points I will explain one by one, and then I will say goodbye to you people. So you know first point, brainstorm. उससे पहले एक बात आप लोग बताइए कि क्या हम सब लोग आर वी ब्लेस्ड विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी? क्या हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं खुद से? व्हाट्स योर ओपिनियन? सर Some problem we can solve. In some problem we need some guidance or help. we can solve the problems. और कभी कर सकते हैं, कभी दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ती है। See, we all are blessed with problem solving ability, my friends. We all. Only thing is that someone of us are very quickly they solve the problem, and someone of us they are chaos, panic आ जाता है, घबरा जाते हैं, पर problem हम solve कर सकते हैं. We are blessed with problem solving. Now, what is brainstorming? The subject which you are teaching, there are so many problems, so many issues related with that. For example, if you are teaching environmental education, water crisis is a very important issue. Climate change is a very important issue. Similarly, so many issues related to your subject. तो अगर कभी आप brainstorming session करें, I mean every day it's not possible, but once in a month or twice in a month, once in 15 days अगर आप ऐसा करें, brainstorming session organize करें, तो ये बहुत मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को, उन्हें अपने आइडियाज को कहने का मौका मिलता है डेफिनेटली. और आई मीन सो मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व. हम अकेले भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब कलेक्टिवली हम किसी इशू पर, किसी मुद्दे पर विचार करते हैं, सोचते हैं, तो डेफिनेटली वी कम टू सम कंक्लूजन. तो मुझे लगता है कि इफ इट इज पॉसिबल इन योर सब्जेक्ट, इन योर इंस्टीट्यूशन, तो वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें. इसका फायदा ये होगा कि ऑल दोज पीपल हु डोंट वांट टू स्पीक इन द रेगुलर क्लासरूम, definitely they will speak in the brainstorming session. आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. जी सर। Yes sir. Yes sir. ये भी एक तरीका है आप बनाने का. आगे आते हैं. इनफैक्ट सेकंड इज कोऑपरेटिव लर्निंग. स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ स्टडी करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, डाउट्स को दूर करने की ज्यादा कोशिश करते हैं बनिस्बत टीचर के. टीचर से एक संकोच होता है, सर्टेन काइंड ऑफ हेजिटेशन इज देयर, बट दे एंजॉय देयर कंपनी. तो कोऑपरेटिव लर्निंग को अगर हम इनकरेज कर सकें, ग्रुप्स उनके बना दे, थोड़ा सा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट उनको दे, तो इफ इट इज पॉसिबल, तो डेफिनेटली whether it is brainstorming, whether it is cooperative learning, it has the potential to reduce your workload, your load in the classroom. आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि अगर लर्निंग की टेंडेंसी एक पैदा हो जाए स्टूडेंट्स में, तो आपका लोड काफी कम हो सकता है. ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, I mean so many good videos, so many good things are there on Wikipedia and YouTube, and of course बहुत सारे इस तरह के जो एजुकेशनल चैनल्स हैं, उस पर काफी चीजें अवेलेबल हैं. बट ओनली थिंग इज दैट कि फर्स्ट यू सी इट, कि क्या उसमें जो बात कही गई है वो अच्छी है, ऑथेंटिक है और ल्यूसिड है, अच्छे से स्टूडेंट्स के समझ में आ जाएगी. तो यू फर्स्ट गो थ्रू दैट एंड देन यू शेयर द लिंक ऑफ दैट विथ योर स्टूडेंट्स. तो काफी उससे भी आपको आसानियां पैदा हो जाएंगी. अगर वो पढ़ लेंगे, उसको एक बार देख लेंगे, तो एटलीस्ट आप पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, या बुकिश नॉलेज पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी.
Blended approach of learning nowadays, we are talking a lot, is something in off online, something in offline, and this COVID pandemic, in fact, it has taught us a lot. और जिसमें से कि एक बात इसने ये सिखा दिया कि जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन टीचिंग का जो भी स्कोप हो सकता है. UGC very recently has issued a concept note. In fact, we all were invited, and उस मीटिंग में काफी माथापच्ची हुई, काफी मेहनत करके, काफी डिस्कशन के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि somehow blended approach will be adopted. तो इट्स अप टू द यूनिवर्सिटीज कि वो 40-60 रखते हैं, 25-75 रखते हैं, 30-70 रखते हैं, बट सूनर और लेटर वी हैव टू अडॉप्ट दिस ब्लेंडेड अप्रोच ऑफ लर्निंग. और इन माय ओपिनियन इट्स अ गुड थिंग फॉर द टीचर. बहुत सारी मसाइल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो है वो सॉल्व हो सकती हैं. तो इफ पॉसिबल यू यूज डेफिनेटली ब्लेंडेड अप्रोच ऑफ लर्निंग. माइंड मैप एंड माइंड मैप कहते हैं किसी भी चीज का स्केच ऐसा बनाना, फिगर ऐसा बनाना, या उसको इतने अच्छे तरीके से बयान करना कि एक पिक्चर दिमाग में बन जाए. मेरे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं माइंड मैप पे, मैंने काम किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने भी काम किया है. तो हाउ टू क्रिएट माइंड मैप, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स. तो आप जब ये मेरा लेक्चर ओवर हो जाएगा, आप गूगल पे क्लिक मारना, बस आप ये लिख दो कि हाउ टू क्रिएट माइंड मैप यार, हाउ टू यूज माइंड मैप, इस तरह से कर देना, तो आप प्लेंटी ऑफ थिंग्स विल कम आउट. तो आप इसे सीख ले जाएंगे, जान जाएंगे कि माइंड मैप क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल हम इफेक्टिव लेक्चरिंग के लिए कर सकते हैं. Active learning. So you were active in my session or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यों एक्टिव थे आप? Yes, sir. आप क्यों एक्टिव थे मेरे सेशन में? सर पता ही नहीं चला, 1.5 घंटा कब से गुजर गया, लग रहा है कि 10-15 मिनट. Yes, sir. We have been active encouraging all session. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सर समय का पता ही नहीं चला. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. देखिए, आप मेरे सेशन में एक्टिव थे सिंपली बिकॉज आई वाज एक्टिव. क्यों बताइए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, बहुत आसान था मेरे लिए. मैं जो स्लाइड पे लेके आया था वो पढ़ते हुए चला जाता, पढ़ते हुए चले जाता, पढ़ते हुए चला जाता. आप क्या करते? 5-10 मिनट के बाद अपना कैमरा बंद कर देते, बोर हो जाते. हमारी जो बहन है वो किचन में चली जाती, खाना बना रही, सर आपको कुछ पुरुष भी आते खाना बनाने, डर के मारे. तो बीच में आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ. Somehow I'm trying to activate you people. तो अगर मैं एक्टिव होगा तो सुनने वाले तो एक्टिव होंगे डेफिनेटली. अगर मैं पैसिव होगा तो जाहिर सी बात है कि आप भी पैसिव हो जाएंगे. तो एक्टिव लर्निंग को इनकरेज करना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी मोनोटोनीज एंड सो मेनी इश्यूज might be removed or reduced if we are using active learning. Finally, Z2A technique. So what is Z2A technique? देखिए, आप क्लासरूम में गए, आपको कोई थियरी पढ़ानी है, तो आप गए, आपने उस थियरी को पढ़ाया, उसको एक्सप्लेन किया और कुछ एग्जांपल्स लेकर के उसको प्रूफ किया और फाइनली लास्ट में उसका इम्प्लीकेशन बताया कि इसका क्या उपयोग. तो दिस इज ट्रेडिशनल अप्रोच. इसको हम कहते हैं A to Z. थियरी बताया, समझाया, क्वेश्चंस पूछे या एग्जांपल्स लिए और लास्ट में उसका इम्प्लीकेशन बताया. इसको उल्टा कर दीजिए. यू गो टू द क्लासरूम and instead of teaching the theory first, you go and tell that the theory which I'm going to teach today has so many implications here, there, something like that. तो पहले implication आपने बता दिया, फिर उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे या कुछ एग्जांपल्स लिए और फिर लास्ट में थियरी बताए. तो ये पहले वाला अप्रोच का उल्टा हो गया, Z2A. But remember, if every day you will follow Z2A, it will be as monotonous, as boring as A to Z. तो इस वजह से आप A to Z फॉलो कीजिए, कभी कभी Z2A भी फॉलो करिए. Definitely it will break the monotony of the classroom. And finally, shape includes 5 things in itself that is shown on the next slide. So 5 components.
stories, humor, activities, presentation style, and examples. My friends? Yes, sir. 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 Please share PPT of this. Yes, sir. Stories आप PPT सुनना ग्रुप में डाल पसंद देते करते हैं। हैं? Yes, sir. Right. What, sir? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Very much, sir. Yes. Very, very much, sir. So see, please do this. It's 12:15 exactly by my watch. I'll be taking 5 more minutes. एक बहुत अच्छी story सुनाता हूँ, और through this story, I want to prove my point that somehow these stories, humor, activities, your unique presentation style, and examples given by you in the classroom matter. ये जो story आपको सुना रहा हूँ, Please, this sir. is of an IS officer, a very vibrant, a very dynamic IS officer, has worked with 5 ministers of India, जो कि मुझे लगता है बड़ी यूनिक बात है कि कोई भी IS ऑफिसर 5 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम करे. His name is Musa Raza. Still he is alive, and of course he was retired in 1995 from the active services. He was a Gujarat cadre IS officer. गुजरात के तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट में वो रहे, कमिश्नर रहे, गुजरात में सेक्रेटरी रहे, फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में आए, यहाँ पर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में काम किया. He worked abroad as well. So many missions he represented the Prime Minister of India. तो काफी dynamic IS officer. So he runs a lot of educational institution. After retirement, he is settled in Chennai, and there he runs a lot of educational institution. तो किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रोग्राम में मुझे बुलाए थे, मैं वहां पर गया था, मैंने उनके बारे में काफी कुछ सुन रखा था, तो मैं उनसे मिलना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था. तो फाइनली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी. तो ये मेरी आदत है कि जब भी मैं किसी बड़ी पर्सनैलिटी से मिलता हूं, तो मैं उससे कोई एक यूनिक बात पूछता हूं, कोई एक अच्छी बात, कोई एक यूनिक बात, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट. तो आप कुछ मुझे बता दीजिए सर. तो फिर आई विल शेयर इट विथ माय स्टूडेंट. सिंस आई एम ए टीचर ट्रेनर, तो वो मेरे जो स्टूडेंट हैं, दे देमसेल्व्स आर टीचर. तो एक बड़े पैमाने पर, काफी बड़े पैमाने पर आपकी बात जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगी. सो आई आस्क्ड मूसा रजा, सर यू आर एन IS ऑफिसर, so definitely you have solved so many problems. एक IS officer जो है बहुत सारी problems को solve करता है, every day solve करता है. So you have solved so many problems. But sir, is there any problem which was very difficult and you solved that problem in a very difficult circumstances? तो अगर सर कोई ऐसी है तो जरा सा प्लीज आप मुझे बताइए. तो उन्होंने कहा, हाँ प्रोफेसर, एक प्रॉब्लम थी यार, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको सॉल्व किया था. It was very difficult problem. And under very difficult circumstances, I solved it. So I said, okay, sir, please tell it to me. तो बताया उन्होंने कि I joined IAS at a very young age. In the first attempt, I qualified IAS. So just after the training at Mussoorie, I was sent as the collector of Surat district of Gujarat. And you know, Surat is situated near the river Tapti. Tapti नदी के किनारे बसा हुआ है. So he said, Professor, each and everything was normal in the city on 28th of July, 1968. So I took dinner, I retired, I went to the bedroom and I slept. So around 5 a.m., someone was knocking very violently at the door of my bedroom. बहुत जोर जोर से कोई दरवाजा पीट रहा था, खटखटा रहा था. So I waked up and I opened the door and I found my secretary was there. So I became very angry. Why you are knocking so violently? What has happened? Secretary said, sir, whole city is flooded. पूरा शहर में बाढ़ आ गई है, सैलाब आ गया पूरे शहर में. Whole city is flooded. So I said to my secretary, are you mad? When I slept at 11 in the night, not even a single drop of rain was there. Now in as many as 4 to 5 hours, you are saying that whole city is flooded. He said, yes, sir. Heavy downpour was there. And since whole Tapti river was flooded, that water of Tapti river basically came to the streets and roads of Surat. So that's why whole city is flooded. I have woken you up because you are the collector of Surat. So the rest of the things you have to do.
So all the best, sir. Now it's your turn to do the things. अब जाहिर सी बात है, it was very difficult. It was very difficult. I'm talking about 1968. उस टाइम में एटीएम नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, कम्युनिकेशन के चैनल्स इतने एडवांस नहीं थे. So it was really very difficult. So Musa said, okay, कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को, क्या किया जाए. He was very young in that. तो दिमाग में ये बात आई कि नदी के किनारे जो बांध बने हुए हैं, द एम्बैंकमेंट ऑफ द रिवर, उसको कहीं कहीं से 5, 10, 8 जगह से खोल दिया जाए. तो अगर हम एम्बैंकमेंट को, बांध को कई जगह से खोल देंगे तो व्हाट विल हैपन, द वाटर ऑफ द रिवर विल गो आउटसाइड एंड देन द वाटर ऑफ द स्ट्रीट्स and water of the roads of the Surat will come to the river, and slowly the situation will get normalized. It was a very good technique. Finally it worked. 4 से 5 दिनों में खूब मेहनत किए लोग, बांध को कई जगह से खोले, पानी बाहर गया नदी का, शहर का पानी फिर नदी में आ गया, and flood problem was solved. He's a very good speaker in fact. Musa Raza is a very good speaker. तो मैं अपनी सांस रोके हुए बिल्कुल ये कहानी सुन रहा था. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि then you know professor, another problem arose. Flood problem was solved, but another problem arose. So I asked sir, what was that problem? He said, so see professor, when the people of Surat slept in that fateful night, they didn't store enough things in their kitchen to eat. They didn't have enough milk, they didn't have enough fruits, they didn't have enough atta, they didn't have enough wheat and rice and all those things. तो जो कुछ भी उनके रेफ्रिजरेटर में था या जो कुछ भी उनके किचन में था वो 4-5 दिनों में खा के खत्म कर दिए. Now there was nothing in their kitchen and all of them were hungry. So things were there in the market, but the problem was that people didn't have the money. यानी अजीब सिचुएशन थी. लोग भूखे थे, वो सामान खरीदना चाहते थे, सामान बाजार में था, but the problem was that people didn't have the money. And I'm talking about 1968. At that time there were no ATMs. तो जाहिर सी बात है कि बहुत मुश्किल सिचुएशन थी, बहुत मुश्किल सिचुएशन थी. So flood problem was solved, but this problem would have led to law and order problem. So it was very difficult what to do. So immediately I summoned all the bank managers of Surat. और सब लोगों को इंस्ट्रक्ट किया कि भाई बैंक खोलो, अपना खोलाओ, फौरन खोलाओ बैंक. सारे बैंक मैनेजर्स ने हाथ जोड़ा कि साहब सारा नोट भीग गया है, अकाउंट भीग गया है, लेजर भीग गया है, पानी भरा हुआ है, पूरी करेंसी डूबी हुई है पानी में. वी कांट मेक द बैंक फंक्शनल. 1 हफ्ते तक धूप निकलेगी तो हम अपना सारा रिकॉर्ड सुखाएंगे, लेजर सुखाएंगे, अकाउंट सुखाएंगे, करेंसी सुखाएंगे, तब उसके बाद जाकर के हम बैंक को फंक्शनल बना पाएंगे. सो इट विल बी टेकिंग 1 वीक. बिफोर 1 वीक वी कांट मेक आवर बैंक्स फंक्शनल. माय फ्रेंड्स, Yes, sir. Yes, sir. Then how the problem can be solved? अब लोग कहानी में जी खो गए सर. हैं. Then how the problem can be solved? Yes, sir. देखिए आप बहुत टेक सेविंग है सारे लोग, मुझे मालूम है, लेकिन कहानी में आगे जी सर, क्या हुआ धन्यवाद. ये गूगल नहीं बता पाएगा आपको, सिर्फ मैं बता पाऊंगा माय फ्रेंड्स. Yes, sir. आप बता दीजिए. यस सर, इसीलिए तो बिल्कुल. देखिए मैं चाहूँ तो बताऊं, चाहूँ तो ना बताऊं, है ना. बताना पड़ेगा. Good will, sir. As time is बता दीजिए सर. almost कर दिया सर. So this was the situation. आपका सेल नंबर मिल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल महंगा, अभी आगे वाली स्लाइड होगा. So see, ओके सर. difficult situation. People were hungry. They wanted to purchase the things, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था. About difficult situation कलेक्टर के साथ. कलेक्टर बहुत यंग था और कलेक्टर को जब ट्रेनिंग दी गई थी तो उस ट्रेनिंग में ये नहीं बताया गया था कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो तुम उस मसले को कैसे हल करोगे, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे. ना तो उसने कभी किताब में पढ़ा था इस समस्या का समाधान. So finally he used his mind, he took a risky decision, and I'm quite sure that only such type of people like Musa Raza can take such a risky decision. हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं ले पाएंगे ना मुश्किल डिसीजन.
बहुत हमारा डिसीजन लिया। एंड व्हाट वाज दैट डिसीजन? ही सेड ओके, गो एंड टेल द पीपल दैट डोंट क्रिएट chaos, don't create panic, come to the collector office with some ration card, some proof of identity. And meanwhile, instructed his secretary to bring the plain of paper. ऐसे पेपर जो दोनों तरफ से प्लेन होते हैं, A4 साइज के पेपर का पेपर लेके आओ, बहुत सारे पेपर जल्दी। और पूरी टीम बनाई 12 बंदे और कहा कि कैंची लेकर के आओ और कैंची से पेपर को काटो। किस शेप में काटो? नोट की शेप में। तो एट दैट टाइम 4 नोट्स आर प्रिवेलेंट। 1 रुपए का नोट छोटा होता था, 2 रुपए का नोट थोड़ा बड़ा होता था, 5 रुपए का नोट थोड़ा और बड़ा होता था, 10 रुपए का नोट और बड़ा होता था। तो कहा कि कुछ कागजों को 1 रुपए के शेप में काटो, कुछ को 2 में, कुछ को 5 में, कुछ को 10 में। किसी का माइक ओपन है, प्लीज बंद कर लीजिए। समझ माइक ओपन, समझ माइक इज ओपन प्लीज। तो कहा कि 4 नोट की शक्ल में कागजों को काटो और ढेरियां लगाओ, पाइलिंग करो। 1 वाले नोट सारे ऊंची ढेर बनाओ, एक जगह रखो, 2 वाले एक जगह रखो, 5 वाले एक जगह रखो, 10 वाले एक जगह रखो। यानी सारे प्लेन पेपर थे, बस फर्क था उनकी साइज का। तो सर ये नया करेंसी पैदा हो गया। 1 1 1 सारे पे, 1 वाले पे, 2 वाले पे 2 का स्टाम्प, 5 वाले पे 5 का स्टाम्प और 10 वाले पे 10 का स्टाम्प। And I will sign on each piece of paper, and my sign will ensure that this is not a piece of paper, rather it's a currency of 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee or 10 rupee. और लोगों से कहा कि कलेक्टर ऑफिस में आ जाओ, राशन कार्ड दिखाओ, एक रजिस्टर में तुम्हारा नाम और पता दर्ज होगा और तुम में से हर किसी को 10-10 रुपए दिए जाएंगे। Not the actual 10 rupees, my friends. Those fake currencies which was created at the collector office. तो किसी को 5-5 के 2 नोट दे दिए, किसी को 10 का 1 नोट दे दिया, किसी को 2-2 के 5 दे दिए, किसी को 1-1 के 5 दिए और 5 का 1 दे दिया, समथिंग लाइक दैट। सबको 10-10 रुपए मिलेंगे। इस पैसे को लो, मार्केट में जाओ और सामान खरीदो। एंड इंस्ट्रक्टेड द शॉपकीपर स्ट्रिक्टली that whosoever bears this note, you have to exchange the goods in return of that. वो इस पैसे के बदले में जो कुछ भी तुमसे मांग रहे देना पड़ेगा तुमको। Violating my order will invite strict punishment. लेकिन दुकानदारों से कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम ये सारे फर्जी नोट, फेक करेंसी अपने पास इकट्ठे करते रहो। और लोगों से कहा कि आज को मैं तुमको 10 रुपए फेक करेंसी दे रहा हूं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद जब बैंक खुल जाएंगे तो तुम बैंक में जाना, वहां से एक्चुअल पैसा निकाल करके लाना और ईमानदारी के साथ कलेक्टर ऑफिस में एक्चुअल 10 रुपया जमा कर देना। तो एट दिस जंक्चर ऑफ टाइम यू आर लिविंग विथ 10 रुपीज फेक, बट आफ्टर 1 वीक कम ऑनेस्टली एंड डिपॉजिट 10 रुपीज एक्चुअल। और दुकान वालों से कहा कि जैसे ही कलेक्टर ऑफिस की तरफ से कोई आदमी आएगा तुम्हारे पास, तो तुम अपनी सारी फेक करेंसीज ले आना और उसके बदले में मैं तुमको एक्चुअल करेंसी दे दूंगा। माय फ्रेंड्स, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज का डीएम होता तो सर वो जेल में जाता। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या किया जा सकता है? आज तो ऑनलाइन बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं, बैंक की जरूरत ही नहीं है इतना। गवर्नमेंट को परमिशन होनी चाहिए। So stories you like, और इस तरह की स्टोरी मैंने आपको 2-3 सुनाई अपने 1.5 घंटे लेक्चर में, एंड ऑल ऑफ यू लाइक। आप काफी मैच्योर हैं, काफी अनुभवी हैं, तो व्हाट टू टॉक स्टूडेंट्स, वो क्यों नहीं स्टोरी सुनेंगे, प्रोवाइडेड दैट की स्टोरी अच्छी हो, उनसे जो उनका जो क्लाइमेक्स हो, जो अंत हो, वो कुछ सबक सिखाने वाला हो, लेसन सिखाने वाला हो, या कुछ मोरल वैल्यूज को प्रमोट करने वाला हो, या वो आपके कंटेंट से मैच करता है। तो स्टोरीज फॉर द सेक ऑफ स्टोरीज, आई डोंट से दैट। स्टोरीज को कंटेक्चुअलाइज करें अपने कंटेंट, यूज सुटेबल एग्जांपल्स, यूज ह्यूमर इफ पॉसिबल,
use desired activities and have unique presentation style, definitely your lecture will be good. There is no doubt about it. So I'm highly grateful to you people for listening to me since last 1.5 पूरा 1.5 घंटा मैं बोला हूँ आपके सामने। मेरा मेल और कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है, थैंक यू सर। कर लीजिए, फिर मैं प्रेजेंटेशन को बंद करता हूँ। सर एक वो शेर सुनाया था, वो उसका रिवाइज कर दीजिए सर। वन मिनट इसको मैं स्किप करूँ, नोट कर लिया। थैंक यू सर। Thank you, sir. सच का पूरा कर दीजिए। जिन्हें प्यास है ज्ञानवर्धक कहानियां लाने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जिन्हें प्यास है Thank you, sir. थैंक यू सर। उन्हें दम से दम। आगे क्या सर? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राइट, अब आप मुझे देख पा रहे हैं? जी देख रहे हैं सर, वो शेर पूरा कर दीजिए। आप लोग अपना माइक बंद करें तो पहले शेर को कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद आपके सवाल। राइट, लिखिए, जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जो न पी सके उन्हें दम बदम, दम बदम मतलब और लो और लो और लो, भरपूर 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 भरपूर, जो न पी सके उन्हें दम बदम। अगली लाइन जो है शेर की, मेरे साकिया, साकी कहते हैं शराब पिलाने वाले, मेरे साकिया तेरे मैं कदे का, मैं कदा यानी शराब खाना जहां पर की शराब दी जा रही, मेरे साकिया तेरे मैं कदे का निजाम है कि मजाक है। निजाम यानी अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न। सो लेट मी रिपीट वंस मोर, मेरे साथिया है उन्हें कम से कम, जो न पी सके उन्हें दम बदम, मेरे साकिया तेरे मैं कदे का निजाम है कि मजाक? मजाक है। राइट। अब अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ लें। I can spend few more minutes with you people. सर एक बात पूछनी थी सर, कुछ बच्चे क्लास में सो जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या किया? अगर स्ट्रेंथ 80 है या 90 है तो कुछ बच्चे सो जाते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं आप? देखिए सर, दो बातें हैं। सर आप क्या पढ़ाते हैं? नाहर सिंह सर? सर मैं बीएड में हूँ। अरे क्या बात है, आपका सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट सेम है। ओके, वेरी गुड। देखिए, अगर रात भर लड़का जाग करके आया है या उसने कोई ऐसी मेडिसिन ली है जो उसको सुस्त करती है तो वो सोएगा। ये फिजिकल अगर वजह है तो वो सोएगा। अदरवाइज इसके अलावा अगर वो सो रहा है तो सम द फॉल्ट इज ऑन द टीचर। या तो उसको इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा है अपने लेसन में, या उसको मोटिवेट नहीं कर पा रहा है आंसर देने के लिए, या जो उसकी बातें हैं वो दम नहीं है उसमें, या उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, तब सोएगा। तो मुझे लगता है कि अगर इस वजह से सो रहा है तो उसमें टीचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जो मैंने तरीके आपको बताए थे कि जिसके थ्रू आप सप्लीमेंट करो लेक्चर को, आई एम श्योर कि अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे, उसमें से कोई सा भी 1, 2, 3, 4 तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। और दूसरी बात है कि आपकी आवाज सर मैटर करती है, तो आपकी आवाज में मॉड्यूलेशन होगा, उतार चढ़ाव होगा, समटाइम्स पर्पसफुल पॉज होगा, एक ही जैसी आवाज, एक ही बिल्कुल, तो वो उसमें फिर वो सोने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है सर, नोट से कैसे फ्री हो जाए? जी नोट से कैसे? विजय सर बोलिए। सर, नोट से कैसे फ्री हो? सब कुछ याद रहता तभी, अगर सामने में रहता है तो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। अच्छा विजय सर, एक बात सुनिए, क्या पढ़ाते हैं सर आप? क्या पढ़ाते हैं? स्टैटिस्टिक्स सर। जी, स्टैटिस्टिक्स। अरे मेरे भाई, इतना अच्छा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं। सी मेरा 11:30 से लेक्चर, मेरा 11 से लेक्चर शुरू हुआ है ना अभी आपके सामने? यस सर। मुझको 11:15 बजे 10:45 पे फायजा मैडम ने फोन किया, ये सेशन किसी और का होना था। यस सर, यस सर। मुझको 10:45 पे फायजा मैडम ने फोन किया कि डॉक्टर साहब अचानक वो कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी मीटिंग में चले गए हैं, आप आ जाएंगे। और मैं जिस हालत में, अदरवाइज मैं टी शर्ट पहन करके आपके सामने लेक्चर देने नहीं आता। मैं जिस हालत में था सीधे आया और मैंने 1.5 घंटा लेक्चर डिलीवर किया।
आप ये बताओ, आपको कभी ये लगा कि मैं प्रिपेयर्ड होके नहीं आया हूँ? No, sir. प्रणाम है। सिंपल रीजन है, ये मेरा कंटेंट है, ये मेरा एरिया है, स्पेशलाइजेशन है। पिछले 25 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें क्या बात है? क्या ऐसी चीज है जो मैं नहीं बोल सकता हूँ 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट? सर मेरा एक समस्या है। सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चीज है ये कि मेरे पास जो है वो नोट्स है, मैं इसको बिना सर्वाइव नहीं कर पाता। नोट आपने तैयार किए हैं सर, आप क्यों नहीं सर्वाइव कर पाएंगे? सर वो तो मैं नहीं बनाया हूँ, सब मुझे याद रहती है, लेकिन फिर लगता है कि सबके सामने रहे तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। जो इस तरह से तैयारी करके बात को सुनिए, बिना तैयारी करके भी अपने अनुभव के आधार पर लोगों को एंगेज किए रहते हैं। देखिए विजय सर, अगर आपको ये लगता है कि मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज भूल जाऊंगा क्लास में, कोई इंपॉर्टेंट स्टेप है, हाँ ये सर, तो ठीक है, आप कागज पर लिख करके ले आइए। कागज पर लिख के ले जाने से कॉन्फिडेंस एक आपको रहेगा। आई एम श्योर कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कागज की। बहुत ज्यादा डिपेंडेंस कागज पर रखेंगे तो पूरी उम्र ये मुसीबत आपके सर पर रहेगी। प्लीज आप बिल्कुल मेरे बात को यकीन, तो आप लिख के ले जाइए, रजिस्टर में रख लीजिए या जेब में रख लीजिए, लेकिन सोच के जाइए कि मैं देखूंगा नहीं, तभी देखूंगा जब अटकूंगा। तो एक दो बार ये प्रॉब्लम आएगी, फिर ये मुसीबत आपसे, अदरवाइज पूरी उम्र। थैंक यू सर, बहुत नाइस। जैसे सर जी रुमाना मैम और दो लोगों ने हाथ पहले से उठाया। यस सर, यस सर। रुमाना मैम, निर्मला सिंह सर ने पहले से हाथ उठाया, तो प्लीज लेट हिम आस्क द क्वेश्चन, फिर उसको अगला क्वेश्चन। रुमाना मैम यू प्लीज। जैसे सर मैं क्लास में जाता हूँ तो पहले ही बोलता हूँ कि तुम्हें क्लास में गलती करने का अधिकार मैं देता हूँ, कि तुम गलती करो पहले। जी वाह। और उसके बाद मैं मतलब भारत में मैं बोलता हूँ कि संविधान में तुमको बहुत सारे अधिकार मिले हैं, लेकिन क्लास में तुमको गलती करने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ, और बच्चे एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आप क्या पढ़ाते हैं निर्मला सर? सर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज यूनिक स्टाइल। ओके रुमाना मैम, यस योर क्वेश्चन। सर मेरा सवाल ये है, अगर क्लास में बच्चे कुछ पूछे टीचर्स को, उस सिचुएशन में टीचर को अगर उसका आंसर मालूम ना हो, तो व्हाट वुड बी द एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स एट दैट टाइम? टीचर्स का क्या एटीट्यूड होना चाहिए? रुमाना मैम, आप टीचर हैं, आप विकिपीडिया नहीं है, राइट? यस सर। राइट सर, मैं भी विकिपीडिया नहीं हूँ, कोई भी विकिपीडिया नहीं है कि आप एक क्लिक करोगे और सारे आंसर आ जाएंगे। इट इज वेरी मच नेचुरल कि ऐसे टेढ़े सवाल क्लास में पूछे जाएं जिसका आप आंसर ना दे पाए। अब आपके सामने दो प्रोबेबिलिटी है, दो संभावना है, या तो कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दो तो उस वक्त तो मुसीबत टल जाएगी, लेकिन अगर वो लड़का विकिपीडिया पे जाके वेरीफाई कर लेगा तो आपकी बहुत जान करेगा क्लास में मैम। तो आई डोंट थिंक दिस प्रॉपर वे। पहला वाला ऑप्शन सही नहीं। अब दूसरा क्या बचा? ऑनेस्टली यू एडमिट कि एट दिस जंक्चर ऑफ टाइम, frankly speaking, I don't know the answer of this question, but your question is very good. It is thought provoking. It is very relevant. Please give me one day time. I will find it and definitely I will give it tomorrow. या आधे घंटे बाद मेरे चैम्बर में आ जाना, या 1 घंटे बाद मेरे चैम्बर में आ जाना, या लाइब्रेरी में आ जाना, या स्टाफ रूम में आ जाना। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा। ये सर स्मार्टली बता दिया ना, ये बहुत अच्छा है कि पद विभागना में बता दूंगा। ऑनेस्टली एडमिट करना कि मैं किसी क्वेश्चन को जानता हूं, दैट इज बेटर, क्योंकि आपके स्टूडेंट वो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट बहुत मैच्योर है। दे कैन अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द टीचर टू नो ईच एंड एवरीथिंग। छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, चौथी जमात के, 5वीं जमात के, कि वो टीचर को इंसाइक्लोपीडिया समझते हैं। मैच्योर बच्चे तो समझ सकते हैं। गॉट माय पॉइंट मैम? सर मेरी थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मैं दीपक सर बोलिए। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चुनाव से दीपक सिंह, बीएड विभाग से। और सर बहुत अच्छा लगा आपका वक्तव्य सुन के, और बहुत इंप्रेसिव लगा क्योंकि आप एजुकेशन से हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ITEP का एक यूनिट भी मिला हुआ है। और जी, तो मेरी एक समस्या ये है सर मेरे कॉलेज की, कि मेरे कॉलेज ने ITEP के थ्रू आवेदन करना चाहा है,
चूंकि हमारे जो 2 वर्ष कोर्स है वो NCTA ने मना कर दिया है, तो चूंकि राजकीय कॉलेज है तो आपकी हेल्प सर चाहिए इस संदर्भ में, तो प्लीज कांटेक्ट नंबर मुझे। आपके पास मेरा नंबर है सर दीपक सर? नहीं सर, नहीं सर, वो इसीलिए मैं एक कांटेक्ट नंबर प्लीज सर नोट कीजिए सर, बताओ। 78724 78724 88 जी 88 500। जी सर, चूंकि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज है और हम लोग सात जो है नियुक्त हुए हैं और 2 साल से हैं, और चूंकि अभी मान्यता नहीं मिल पाई है, इस संबंध मेरी आप फुर्सत में मुझसे बात करिए तो फिर मैं आउट बताता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी गुड। एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई सवाल? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन ये है, अब गए सर, कोई क्वेश्चन ये नहीं है, सब क्वेश्चन वो है। सर चले गए, जा चुके हैं सर। नहीं मैं नहीं सर है सर है। अच्छा है सर, अभी है सर। हाँ सर है। मैं आप जा चुके तो सर नहीं जा है तो मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। अच्छा है सर। पूनम मैम कुछ कहना चाहिए? पूनम सिंह मैम जी सर। कुछ कहना चाहती है मैम? नहीं सर, नहीं। ओके सर मैं कुछ कहना थैंक यू चाहता वेरी हूँ। मच। आप लोगों के बीच में काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा समय व्यतीत हुआ आपके थैंक यू साथ। सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर बोल रहे हैं, पहले सुन लो। मतलब सर, मतलब थैंक यू सर बोल के सर को भगा देना है। एक और सेशन मेरा ही रखेंगे, अब देखता हूँ मैं कब रखते हैं वो, तो फिर जल्दी आए सर। बिल्कुल सर, दूसरा टॉपिक लेकर के आऊंगा, फिर और अच्छी बात। बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ज्यादा भूख लग गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।